हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ट्यूब। साइंस वीडियो के इस चैप्टर में, इस वॉल्यूम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है हेरिडिटी, सबसे पहले हम हेरिडिटी को ही डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी is very simple word, means the transfer of characters from one parent to their children, or we can say the transfer of traits from one generation to the next generation is called heredity. So heredity को simple words में हम समझ सकते हैं कि characters का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर ही क्या है, हेरिडिटी कहलाती है। So हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे हम सब। जब हेरिडिटी की बात करते हैं देखिए, जो भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, these offsprings are not very identical to their parents. They are having slightly variation than their parents. For example, all the dogs are not identical same, and the same case for the human beings also. We are also not the same copy of our parents. We have slightly variations in our physics, in our nature and all other things. Okay, so variation very important role play करते हैं to evolute a new generation, to evolute a new species. So variation को और देखें हम तो variation, what are the variation? The differences between the character or the traits among the individuals of the same species are called variation. एक ही species में उसके characters में, उसके traits में जो variations आ जाते हैं, जो differences आ जाते हैं, those all are called variations. जब variation के बारे में हम बात कर रहे हैं तो और समझने हैं इसके बारे में कि कैसे ये variation जो है accumulate होते हैं। बहुत सारे ऐसे variations हैं, हम देखते हैं कि एक generation से next generation में transfer नहीं होते हैं, but gradually there are some evidences that being in one generation to next generation there are many characters those have been inherited or accumulated in one generation to the next generation. So when organisms reproduce, the offsprings show a minor variations, और ये minor variations जो हैं that is due to the inaccuracy of the copy of DNA. जो DNA की कॉपी बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनएक्यूरेसी की वजह से ही ये वेरिएशंस का प्रोडक्शन होता है। सो दीज वेरिएशंस आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है, और वी कैन से द ऑफस्प्रिंग्स हैं, दोज आर आइडेंटिकली इक्वल और आइडेंटिकली सेम टू देयर पेरेंट्स, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दीज वेरिएशंस आर हैविंग टेकिंग प्लेसेस more than that of the asexual reproduction. Some variations, अब देखिए ये जो variations हैं जरूरी नहीं है कि ये helpful हो, या जरूरी नहीं है कि ये नुकसानदायक हो, harmful ही हो। So some variations are helpful and some others are harmful also. So आप यहाँ जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, there are 3 hands, you see, और 3 hand में जो feather है, उसकी टेल का फेदर पे आप ध्यान दीजिए। सो फेदर का जो कलर है उसमें वेरिएशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये वेरिएशन एक टाइम के बाद में एक्यूमुलेट होकर नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, द सेम वे वी कैन से इन द जिराफ आल्सो, they are looking just same to each other, but when we see carefully these are not identically same to each other, means they are having slightly variations in their structure, in their body color, in their spots. So कुछ variations लेकर आते हैं, इन्हीं से ही variation से ही new generation का formation होता है, new species का formation होता है, और ये new species का formation ही आगे चलकर उस generation के लिए helpful भी हो सकता है कि जो environmental changes के according अपने आप को तैयार करते हैं। अब जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जब हम बात कर रहे हैं, so there should be certain rules and regulations
to follow them, the next generation will be taking the character from their parents, and which character will appear and which character will not appear in the first progeny and the second progeny, and some traits are there which never appear or which never disappear. So इनके बारे में आज हम यहाँ से बात करते हैं। कैरेक्टर्स जो हैं जीन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जीन आर द पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आर फाउंड इन सेल। सो सेल की हम बात कर रहे हैं, तो सेल से जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर जब होता है तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने ही चाहिए थे, और इसके लिए सबसे जो फर्स्ट और प्रायर मोस्ट जो एफर्ट किए गए वो द ग्रेट ग्रेगोर मेंडल के द्वारा किए गए, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़े स्कॉलर नहीं थे, कोई बहुत बड़े डॉक्टरेट की डिग्री वाले एजुकेशनिस्ट नहीं थे, बट उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और काम के एक सिस्टमेटिक तरीके को फॉलो करते हुए रूल्स दिए, जिनको हम रूल्स फॉर इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उन्होंने 3 लॉ दिए थे, उन तीनों लॉज को हम रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो लॉ है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, द सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और वी कैन से इंडिविजुअल असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ इन्होंने दिए। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट का जब नाम आता है तो वहां पर हमें समझ में आ रहा है कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, जो अपने आप को डोमिनेट करके रखती है, जो अपने आप को अपीयर करके रखती है, जो सबके सामने अपना एक इफेक्ट छोड़कर जाती है, जो कभी सप्रेस्ड नहीं होती है। ऐसे जो ट्रेड्स हैं उनको हम डोमिनेंट ट्रेड्स कहते हैं। बट इन साइंस लैंग्वेज ऐसे ट्रेड्स जो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हो जाते हैं उनको हम डोमिनेंट ट्रेड्स कहते हैं, और ऐसे ट्रेड्स जो फर्स्ट जनरेशन में हिडन रहते हैं, छुप जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रेसेसिव ट्रेड्स। जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और जो जो रेसेसिव ट्रेड्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आप, जब आप देखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो कैपिटल टी द लेटर रिप्रेजेंट द टॉलनेस एंड दिस इज द dominant character, or we can say the dominant trait. The small t represent the dwarfness, or we can the shortness, और ये represent करता है small t के थ्रू। और ये जो traits हैं फर्स्ट जनरेशन में, जब एक प्योर टॉल प्लांट के को दूसरे प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं, all the plants are of same type and those are of tallness, having the tallness as a dominant character। और यहाँ पर कोई भी प्लांट जो है फर्स्ट वन जनरेशन में कोई भी प्लांट शॉर्टनेस को लेकर नहीं अपीयर हो रहा है। तो ऐसे ट्रेड्स को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, एंड दिस लॉ सेज दैट इन द फर्स्ट जनरेशन और वी कैन इन द फर्स्ट प्रोजनी ओनली डोमिनेंट ट्रेड्स appear themselves. Okay, so this is the first law of inheritance that is given by Mendel. The second one is the law of segregation. Segregate, it's a scientific term, but in the simple word we can say separate. Means जो एलील हैं, the traits are in a group, और ट्रेट के ग्रुप को हम एलील्स बोलते हैं। एलील जो है, जो ग्रुप है ट्रेड्स का, वो ग्रुप जो है ग्रुप में रहता है पहले, लेकिन जब उनके गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन की स्टेट में वो दोनों ट्रेड्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि
एक डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस की वजह से रिसेसिव ट्रेट जो है हमेशा के लिए रिसेसिव ही रहेगा, दैट इज नॉट लाइक दैट। फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेट करता है, डोमिनेंट जो ट्रेट है वही, लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो हिडन ट्रेट्स हैं, जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट टू एलील्स दैट आर कोडिंग फॉर द सेम ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस समय दोनों जो ग्रुप हैं, एलील के जो ग्रुप है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये दो ट्रेट एक साथ हैं। कैपिटल वाई फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट फॉर द येलो ट्रेट, सो कैपिटल वाई इज फॉर येलो एंड स्मॉल वाई इज फॉर व्हाइट ट्रेट। जब दोनों एक साथ हैं तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल वाई इज सेपरेटेड एंड देन द स्मॉल वाई इज आल्सो गेटिंग सेपरेटेड। सो ये जो लॉ है, ये जो प्रोसेस है, इसी को लॉ के रूप में मेंडल साहब ने इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। थर्ड एंड द लास्ट लॉ जो उनका है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट हम सभी जानते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, दूसरे ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे दोनों ट्रेट्स के बारे में कि दोनों जो ट्रेट का एक जो ग्रुप है, एक पेयर है, उस पेयर में कोई भी जो जीन है और कोई भी जो फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं, वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, मीन्स सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी को हम कह रहे हैं, जो की कंसेप्ट के रूप में हम इसको अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज दैट द जीन्स फॉर वन ट्रेट आर नॉट इनहेरिटेड टुगेदर। मीन्स एक ट्रेट के लिए जो दो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं वो दोनों एक साथ नहीं इनहेरिट होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते, दैट वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दे डू नॉट इनहेरिटेड टुगेदर विद अनदर ट्रेट, दूसरे ट्रेट के साथ वो नहीं जाते हैं। तो ये थे रूल फॉर इनहेरिटेंस, दोज वर गिवन बाय द ग्रेट पर्सन दैट वाज ग्रेगर मेंडल। तो यहाँ आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का जो पोर्शन है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर करें। थैंक यू।